launch an attack against any country. However, should anyone harbor ill intentions, display greed, attempt an assault, or seek to cause harm or harassment, the Iranian nation will deliver a firm and decisive blow. کہ کیا میں یہ کہہ رہی ہوں، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ جو آب و ہوا ہے، جو فضا ہے، کیا اس میں کیا ایسی ارجنسی محسوس ہو رہی ہے جو ہم خبروں کی ہیڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی گھنٹے حملہ ہو سکتا ہے؟ ایران اور امریکہ کا جو یہ کانفلکٹ ہے، یہ کوئی آج کا یا ایک مہینے پہلے کا یا ایک سال پہلے کا نہیں ہے. یہ 47 ایئرز پرانا کانفلکٹ ہے. تو ایرانی سوسائٹی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، بچپنے سے سب کی عمر زندگی اس میں گزری ہے کہ امریکہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، امریکہ ہمیں نابود کرنا چاہتا ہے، امریکہ حملہ کر رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا ایران کے اوپر امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، تیاری کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1000 ایران نے ڈرون تعینات کیے ہیں. اس کے علاوہ 2000 میسائلوں سے امریکہ کا ہم سواگت کریں گے، ایران کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے. تیسری بات یہ آ رہی ہے تیاری کے طور پر کہ جو بوم شیلٹرز ہیں وہ ان کو ریلوے اسٹیشنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ان میں ایک طرف آپ کہتے ہیں کانفیڈنٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سینس آف ارجنسی نہیں ہے، تو یہ تیاری اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ تیاری کیوں ہے؟ تو تیاریوں کی جو بات کی جا رہی ہے 1000 ڈرونز 2000 میسائل وغیرہ، یہ تو بہت چھوٹے فگرز ہیں. صحیح فگرز کا تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملٹری سیکرٹس ہے جو پبلک میں نہیں ریلیز کیے جاتے. لیکن چاہے وہ ملٹری اعتبار سے ہو، جیسے کہ 12 روزہ جنگ میں بہت کلیئرلی سامنے آیا، ایران نہ صرف اپنے آپ کو کانفیڈنٹ پوزیشن میں فیل کرتا ہے، بلکہ ریالٹی بھی گراؤنڈ پر یہ ہے کہ اس کی ڈیٹرنس کیپیبلٹی بہت ہائی لیول پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 47 سال سے امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹ حملہ کر نہیں سکا. جب امریکہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ آپ کا سمے ختم ہو رہا ہے، یور ٹائم از اپ، اس کے علاوہ یورپین یونین جو ہے وہ ایرانین جو اسلامک جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کو باقاعدہ آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کر دیتا ہے. ابھی ٹرمپ 2 مانگیں کر رہے ہیں اور اس میں دوسری مانگ تو مجھے لگتا ہے کہ بے حد ہنسی والی بات ہے، بڑی ہاسیاسپد ہے. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام طرح کی ہنسا جو ہے اسے ختم کرنا ہوگا. دیکھیے شہروانی صاحبہ، یہ جو مقابلہ ہے یہ 47 سال سے چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنے 2-3 جنریشن جو یہ مقابلہ کرتے ہوئے یہ سوسائٹی آگے آئی ہے، خاص طور پر جو اس کی لیڈرشپ ہے، جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وغیرہ، وہ امریکہ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ میڈیا اور ٹویٹ اور ٹروتھ اور یہ سب چیزوں سے اپنے تصور کو نہیں قائم کرتے ہیں. ان کے پاس 47 ایئرز کا لائیو ایکسپیرینس ہے کہ وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں. ان کو یہ بات کی اچھی سمجھ ہے. نمسکار، اس خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں عارفہ خانم شیروانی. دیش میں یوں تو کئی طرح کے گھٹنا کرم پیش آ رہے ہیں. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں چرچا ہو رہی ہے ایپسٹین فائلز کی، جس میں بھارت کے بھی کئی مہتوپورن لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے، جس میں بھارت کے پردھان منتری تک شامل ہیں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ادیوگ پتی انل امبانی تک. لیکن اس دوران ایک بہت مہتوپورن خبر جس پر نظر بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے یہ بڑی خبر ہے، نہ صرف کہ ایران کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، بلکہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا. اور فی الحال اگر کچھ گھنٹے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایران میں جو سنکٹ ہے وہ کس مقام پر آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو بعد میں خبر لگے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے لگاتار. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے کیونکہ ایک بڑا بیان آیا ہے آیت اللہ خامنئی، وہاں کے سپریم لیڈر ایران کے ہیں، ان کی طرف سے، جو میں کہوں گی اب تک کا سب سے صاف بیان ہے. اور وہ پوری طریقے سے بتاتا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی دھمکی کے مد نظر دبنے والا نہیں ہے. خامنئی صاحب نے یہ فرمایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے طریقے سے یہ جو جنگ ہے یہ صرف ایران تک سیمت نہیں رہے گی، یہ پوری شیتریہ جنگ بن جائے گی، یہ پوری خطے کی یہ پوری جنگ بن جائے گی. تو 88 سال کے خامنئی صاحب، جن کا ایک چھتر راج رہتا ہے پورے ایران پر، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان الیکٹڈ ہے، اس کے باوجود بھی ان کی طاقت کا اندازہ لگانا
बहुत मुश्किल है, उन्होंने ये कहा है। अब तक सबसे क्लियर स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि ईरान के स्टेट टेलीविजन पर कि द अमेरिकन शुड नो दैट इफ दे स्टार्ट अ वॉर दिस टाइम इट विल बी अ रीजनल वॉर। अमेरिकन को पता होना चाहिए कि इस बार अगर उन्होंने जंग की शुरुआत की तो ये पूरे खित्ते में ये जो जंग है ये फैल जाएगी। इसके अलावा आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए इस बात का कि इसकी संवेदनशीलता इन खबरों की कितनी है कि अभी हम देख रहे थे, कुछ ही घंटे पहले की बात है कि एक इमारत पर, इस इमारत पर आप देख रहे हैं कि ये धुएं का एक गुबार हमारे सामने दिख रहा है बंदर अब्बास शहर में, और पता लगा कि शायद क्या जंग का आगाज हो गया। पूरा ट्विटर एक तरह से हजारों की तादाद में लोग ट्वीट करने लगे और ये इस तरह की अफवाहें उड़ने लगी कि क्या वाकई अमेरिका ने पहले से ही न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया है। अमेरिका कई तरह की शर्तें लगा रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे ईरान से बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आकिफ जैदी साहब हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं ईरान में। ईरान का बहुत अहम शहर है, मैं कहूंगी तेहरान से भी अहम शहर है कुम, जो एक पूरा रिलीजियस, एक मैं कहूंगी कि धार्मिक एक केंद्र माना जाता है, एक रिलीजियस सेंटर माना जाता है। वहाँ जो तमाम जो रिलीजियस जो क्लर्जी हैं वो वहीं कुम में बेस्ड हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर ठिकाना है उसके लिहाज से भी कुम महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकिफ जैदी साहब, वहां पर रिसर्चर हैं और ईरान के तमाम हालात पर वो नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले आकिफ साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी मैं तो ये देखती हूँ कि ग्राउंड पर रहना कितना अहम होता है। हो सकता है आपको इस बात का अंदाजा ना हो कि मिलिट्री कैसी तैयारी कर रही है, सरकार कहाँ तक पहुंच रही है, लेकिन जो फिजा में, जो हवा में इस वक्त जो खबर है, जो महसूस कर रहे हैं आप, वो क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि यहाँ से ज़मीनी हालात के बारे में आपको और नाज़रीन तक सही इत्तला पहुँचाने की मैं कोशिश कर सकूँ। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये मौजू, ये मसला कोई किसी कोने में कोई इलाक़ाई झड़प नहीं है। जो भी यहाँ पर हो रहा है आजकल, उसका असर पूरी दुनिया पर है और आगे और भी हो सकता है। और साथ ही में एक और वजह कि ये हमारी आपसी गुफ्तगू अभी ख़ास अहमियत रखती है वो ये है कि ईरान के बारे में गरचे बहुत ख़बरें हैं, हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई ख़बर बना रहा है, हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख रहा है, लेकिन हकीकत ये है, और शायद मेरी गुफ्तगू के आखिर तक नाज़रीन और दर्शकों के लिए कुछ हद तक ये चीज़ वाज़े और होगी। हकीकत ये है कि ईरान के बारे में ज़्यादातर जो कुछ लिखा बोला जा रहा है वो शोर की हैसियत रखता है, हकीकत से उसका कम राब्ता है। और आप जानती हैं शोर की और हंगामे की ये ख़ासियत ये होती है कि जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हकीकत को देखना और समझना। तो ऐसे वक्त पर हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये फ़ायदेमंद रहेगी। अब आपका जो सवाल है कि इस वक्त ज़मीनी तौर पर क्या हालात हैं, तो अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो इस वक्त ईरान के अंदर आम लोगों के दरमियान, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बाज़ार में वग़ैरह, हालत इस वक्त जो है वो एक स्टेबिलिटी और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की है एक तरफ, यानी एक पायदारी है, एक ख़ुद एतमादी है एक तरफ, लेकिन साथ में एक टेंशन का भी एक अंडर करंट साथ में चल रहा है। दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं इस वक्त। अब ये टेंशन का अंडर करंट ये क्यों है, ये तनाव क्यों बना हुआ है, ये ज़हनी तौर पर एक स्ट्रेस क्यों एक हद तक बना हुआ है सोसाइटी में, उसकी वजह आपके सामने है। उसकी वजह, मेन वजह है कि 8 और 9 जनवरी में जो यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जो सड़कों पर यहाँ पर टेररिज्म हुआ, उससे वो इस सोसाइटी के लिए एक नया तजुर्बा था। ये सोसाइटी मॉब लिंचिंग, ये सोसाइटी इस किस्म के वायलेंस की आदी नहीं है। उसने देखा है कि ISIS, दाइश ये सब काम करता है, लेकिन उसकी सड़कों पर और गलियों में ये सब नहीं हुआ था। तो अभी भी उससे रिकवर पूरी तरह किया नहीं है, उसके लिए एक शॉक था। टेररिज्म किस तरह से, अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो किस तरह से आप उसको टेररिज्म कह रहे हैं? 8 और 9 जनवरी जो हम लोगों ने खुद यहाँ देखा, 8 और 9 जनवरी यहाँ पर बहुत सारे शहरों में एक वक्त यहाँ पर आर्म्ड मॉब्स और गैंग्स निकले। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 200 लोग, कहीं पर बड़ा अगर ग्रुप हुआ, और इन लोगों ने अटैक किया। इन लोगों ने मुख्तलिफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और आम पब्लिक पर अटैक किया। बाज़ारों में आग लगाई, कई 100 मसाजिद जलाई गई हैं, कई 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जलाए गए हैं, तकरीबन 200 एम्बुलेंसेस डैमेज की गई जो ज़ख्मी लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का काम अंजाम दे रही थी, वगैरह वगैरह। एक बड़ा इवेंट यहाँ पर हुआ है कि जिसकी जो यहाँ पर जो फ़िलहाल डेथ टोल उसके लिए रिकॉर्ड की गई है वो 3117 की एक
फिगर यहाँ पर है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत ही शॉकिंग बिल्कुल। एक्सपीरियंस यहाँ मैं आपको आज की खबर पर ले कि आती यहाँ हूँ, मैं पर ज़रूर इस पे और भी बातचीत करूंगी आपसे, लेकिन चूंकि दर्शक अभी फिलहाल जो जानना चाहते हैं, जनवरी के महीने से अब हम फरवरी के महीने में जी, मैं दाखिल हो उसी गए। की पर आ मैं उसी मैं के पर आ एक रहा हूँ, लम्हे में आती हूँ आपके उसी पास, पर आ मेरे रहा हूँ। मेरे तो सवाल उसकी को, वजह जी हाँ, मैं सवाल का एक हिस्सा ये भी जोड़ देती हूँ साथ साथ, कि क्या, मैं ये कह रही हूँ, जब मैंने आपसे पूछा कि जो आबो हवा है, जो फिजा है, क्या उसमें क्या ऐसी अर्जेंसी महसूस हो रही है जो हम खबरों की हेडलाइन में देख रहे हैं कि किसी भी घंटे हमला हो सकता है? नहीं, वैसी अर्जेंसी यहाँ पर महसूस हरगिज़ नहीं हो रही है। उसकी चंद वजूहात है, वही जो मैंने कहा कि एक स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक अंडर करंट ऑफ नर्वसनेस या टेंशन भी है। वो नर्वसनेस और टेंशन वो पलटता है वो 8 और 9 जनवरी के वाक़यात, और इसका डर और खौफ है कि इस किस्म के इंटरनल डिस्टर्बेंस फिर हो सकता है, असैसिनेशन की शक्ल में, सैबोटाज की शक्ल में। इसको लेकर एक नर्वसनेस और एक टेंशन सोसाइटी में पाया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल अटैक को जहाँ तक लेकर बात है, यहाँ पर हरगिज़ उस किस्म का खौफ और टेंशन नहीं बना हुआ है जो इस वक्त दुनिया के मीडिया में के ज़रिए दुनिया भर में छाया हुआ है। उसकी चंद वजूहात हैं, मैं तेज़ी से उन रीज़न्स को गिना देता हूँ। एक वजह तो यह है, यहाँ के मीडिया के अंदर जो वॉइसेस पाई जाती हैं, बाहर जो कुछ हो रहा है मीडिया में सब यहाँ पहुँचता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की हर ट्वीट ओरिजिनल विद ट्रांसलेशन विद कमेंट्री सब चीज़ यहाँ आती है। सारे जो बातें हो रही हैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में, ये जंग हो जाएगी, यूएसएस एब्राहम लिंकन यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, सब यहाँ के मीडिया में हर सेकंड टू सेकंड वो कवर हो रही है। लेकिन ये एक हिस्सा है मीडिया का। साथ में यहाँ पर मीडिया के अंदर जो संजीदा और ज़िम्मेदार पहलू है, चीज़ों का एनालाइज करना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पेश करना, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है यहाँ के मीडिया में। तो क्योंकि यहाँ के मीडिया में वैरायटी ऑफ वॉइसेस ज़्यादा है, और बल्कि मैं कह सकता हूँ वो चीज़ जो हम लोग हिंदुस्तान में जिसके लिए आरज़ू और तमन्ना करते हैं कि संजीदा और ज़िम्मेदार जो एलिमेंट और उनसुर है वो हमारे मीडिया में गालिब हो, वो क्योंकि इस सोसाइटी में अभी भी ऐसा है, तो उसकी वजह से वो पैनिक वाली सिचुएशन जो दूसरे बाहर लोगों को पेश आ रही है और वो इमेजिन कर रहे हैं कि ईरान में इससे भी ज़्यादा पैनिक होगी, हरगिज़ ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो एक रीज़न है मीडिया का जो डिफरेंस है, यहाँ पर मीडिया में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल होना। सेकंड रीज़न उसकी वजह यह है कि देखिए, जैसे आप भी अपने प्रोग्राम्स में कहती हैं और सही है कि ईरान और अमेरिका का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई आज का या एक महीने पहले का या एक साल पहले का नहीं है। ये 45-47 ईयर्स पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। तो ईरानी सोसाइटी जो है वो बड़ी हुई है, बचपने से सबकी उम्र ज़िंदगी इसमें गुजरी है कि अमेरिका हमसे दुश्मनी करता है, अमेरिका हमें नाबूद करना चाहता है, अमेरिका हमला कर रहा है, हमला करना चाहता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और यही जो मैं मीडिया वाला जो पर्सपेक्टिव आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें भी देख लीजिए आजकल खबरों में, मैं एक मिसाल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए भी और आपके व्यूवर्स के लिए भी। आजकल क्या है, यूएसएस एब्राहम लिंकन वो पर्शियन गल्फ़ की तरफ बढ़ रही है, ये बड़ी खबर है, एक बड़ा जंगी बेड़ा आ रहा है और वो ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। लेकिन मैं खुद व्यूवर्स से मैं कहूँगा कि इंटरनेट में जाकर आप टाइप करें मई 2019 यूएसएस एब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ़, इस टाइप के कीवर्ड से आप सर्च करें मई 2019, तो आप देखेंगे कि यही अमरीकी सदर का जब पहला टर्म था, तो उस वक्त उसने यह ऐलान किया कि हम यूएसएस एब्राहम लिंकन को पर्शियन गल्फ़ में भेज रहे हैं ईरान से लड़ने के लिए। और वो हर मिनट की फिर रिपोर्ट आई, मेडिटेरेनियन सी में है, अब वो सुएज़ कनाल में, अब रेड सी में, अब बाबल मंदब में, इस तरह से रिपोर्टिंग होती गई, यहाँ तक कि एकदम से 12 मई को ये खबर आती है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ़ के बाहर रुक गया है। 7 महीने वो पर्शियन गल्फ़ से दूर रहा, बाहर रहा, अंदर आया नहीं। पर अरेबियन सी जो हमारे मुल्क के नज़दीक भी है, उससे मिला हुआ है, उसमें उसने कई चक्कर काटे 7 महीने तक, लेकिन अंदर और नहीं वहाँ आ से पाया। फिर वापस जी मेडिटेरेनियन जी हाँ, नहीं आया अंदर। जो सेंस ऑफ अर्जेंसी ठीक आप है, कह रहे हैं कि ठीक है, ईरान में नहीं है, और सही, आप हैरान होंगे इस बात को लेकर कि यहाँ है सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप सोचिए, कल मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, और उसके बाद टहलते टहलते वहां पर एक कश्मीरी हमारे एक व्यूअर मिल गए और देख के मुझसे पूछने लगे, मुझे आवाज़ दी पीछे से, आरफा जी अच्छा हुआ आप मिल गई यहाँ पर, और मुझे आवाज़ दी और कहा बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा या नहीं। मैं इतना ज़्यादा हैरत मुझे हुई कि देखिए, हिंदुस्तान में जो अवाम है उसका एक हिस्सा कम से कम बहुत कंसर्न्ड है ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं जी, बैकग्राउंड तो आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शुरुआत में हम उन सवालों को एड्रेस करें जो आम जो हिंदुस्तानी है उसकी
चिंता से जुड़ी हुई है, जिसमें अब ये जो बयान है आयतुल्लाह साहब का, आप मुझे बताइए कि इसको क्यों कह रहा है वेस्टर्न मीडिया कि अब तक का सबसे कैटेगोरिकल बयान है, सबसे साफ बयान है, सबसे निर्णायक बयान है ये, कि वो ये कह रहे हैं कि जंग होती है अगर तो अमेरिका और अमेरिकन से ये कह दीजिए कि पूरे खित्ते में पूरे रीजनल वॉर होगी। और अभी मैंने 2 दिन पहले हामिद अंसारी साहब का इंटरव्यू किया था और बिल्कुल हू बहू उन्होंने यही जवाब दिया। मैंने पूछा कि भाई आप एम्बेसडर रह चुके हैं ईरान के, हमें बताइए कि क्या हो रहा है वहां पे, तो उन्होंने कहा कि अगर जंग होती है तो ये पूरे खित्ते में फैलेगी और इसको सिर्फ हम ईरान, यूएस, इजराइल तक नहीं सिमट पाएंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं आयतुल्लाह साहब के? जी, इस बयान को मैं एक ऑर्डिनरी बयान देख रहा हूँ, इस मानों में कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए या इस रीजन के अंदर जो रहते हैं लोग और जो डिपेंडेंट नहीं है वेस्टर्न मीडिया पर, उनके लिए इस टाइप का बयान दूसरे लीडर्स महीनों से दे रहे हैं। अभी इसी महीने के अंदर ये बयान इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस के कई दूसरे लीडर्स ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। हाँ, ये पिछले 1-2 महीने में पहली बार है कि आयतुल्लाह खामेनी ने ये बयान दिया है, तो वो जो इसको सिग्निफिकेंस जो बाहर दी जा रही है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी वहाँ पर होने की वजह से, वो यहाँ पर उतनी अहमियत नहीं रखती। नहीं है कि बात अहम नहीं है, बात नई नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड और थरली वेल डिस्कस्ड एक टॉपिक यहाँ पर पाया जाता है। अब अगला सवाल मैं आपसे तो पूछना चाहती यहाँ हूँ कि ये मुख्तलिफ जी हाँ, ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ईरान के लिए जो कहा जा रहा है कि तैयारी किस तरह कर रहा है ईरान, आप कह रहे हैं कि इरानियन सोसाइटी, नेशन इस वक्त पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, ये खुशी की बात है। और आप ये कह रहे हैं वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है वो नहीं है। हालांकि ये मुझे हैरान जरूर कर रही है ये बात, क्या वाकई ईरान एक तरह से एक आइलैंड के तौर पे जी रहा है? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ने बुरी तरह ईरान को काट भी दिया है। हम और आप जूम के जरिए ये बातचीत करने वाले थे या और कोई ऐप हम इस्तेमाल करने वाले थे, नहीं, सब कुछ चीज़ों को सैंक्शंस के तहत ब्लॉक किया हुआ है। आप मुझे बताइए, तैयारी के तौर पे ये बताया जा रहा है कि 1000 ईरान ने ड्रोन तैनात किए हैं, इसके अलावा 2000 मिसाइलों से अमेरिका का हम स्वागत करेंगे, ईरान की तरफ से ये बयान आ रहा है। तीसरी बात ये आ रही है तैयारी के तौर पर कि जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं वो उनको रेलवे स्टेशनों को तब्दील किया जा रहा है उनमें। एक तरफ आप कहते हैं कॉन्फिडेंट है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, तो ये तैयारी, इसे किस तरह से देख रहे हैं फिर आप? तैयारी क्यों है? तैयारी इसलिए है क्योंकि ईरानियन नेशन और अमेरिकन एलीट के दरमियान 47 ईयर से जंगी हालात हैं। तो ये तैयारी एक यहाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। ये तैयारी यहाँ के स्कूल के कोर्स के अंदर शामिल है, यहाँ के कल्चर में शामिल है, यहाँ की कहानियों में, फिल्मों में, सब में शामिल है। हर ख़ानदान का कोई ना कोई रिश्तेदार है जो पिछले 47 साल में किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में, नज़दीक या दूर का रिश्तेदार, वो कहते हैं शहीद हुआ है। तो यहाँ के कल्चर को समझने की ज़रूरत है कि इसके लिए ये इतनी शॉकिंग और इतनी अलार्मिंग बातें नहीं हैं। तो तैयारियों की जो बात की जा रही है, 1000 ड्रोन्स, 2000 मिसाइल वगैरह, ये तो बहुत छोटे फिगर्स हैं। सही फिगर्स का तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि ये मिलिट्री सीक्रेट्स है जो पब्लिक में नहीं रिलीज़ किए जाते। लेकिन चाहे वो मिलिट्री एतबार से हो, जैसे कि 12 रोज़ा जंग में बहुत क्लियरली सामने आया, ईरान न सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट पोजीशन में फील करता है, बल्कि रियलिटी भी ग्राउंड पर यह है कि उसकी डेटरेंस कैपेबिलिटी बहुत हाई लेवल पर है। और यही वजह है कि 47 साल से अमेरिका कभी भी डायरेक्ट हमला कर नहीं सका है। पब्लिक के अंदर भी जो यूनिटी इस वक्त पाई जाती है वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वो भी बहुत हाई लेवल पर इस है। यूनिटी और जहाँ तक ये सब बातें, रेलवे मेट्रो स्टेशन, एक मिनट, ये बस मैं बात पूरी कर, जो मेट्रो स्टेशन और पार्किंग लॉट की बातें हैं, अभी भी ईरान, तेहरान में मुसलसल डेली फ़्लाइट्स आ रही हैं सिविलियंस। मैं सबसे जो सीरियसली इसको परस्यू करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि बाहर इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं है, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है ईरान के बारे में, यहाँ आ जाएं और देख लें कि किस तरह से लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही है। जो खबरें आ रही हैं कि लोग जो है बंकर में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या हकीकत है, आके खुद ही उसको देख सकते हैं। ज़ैदी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कई बार ईरान जब मैं गई हूँ तो उस दौरान भी मैंने देखा है कि जो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट है वो वहाँ की एक तरह की जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट ऑफ तेहरान जिसे हम कह सकते हैं, उन पर पूरी तरीके से हावी है। वहाँ तो रिलीजियस जलसे में भी डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे बड़े आसानी से लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये वाकई एक ऐसी जंग हो सकती है। और पिछली बार न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर चुका है यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये कोई मजे की बात नहीं है, कोई मजायका नहीं होगा, एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर ये ऐसा हो जाता है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब अमेरिका इस तरह से बात करता है कि आपका समय खत्म हो रहा है, योर टाइम इज अप, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो ईरानियन जो इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बाकायदा आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है। अभी ट्रंप दो मांगे कर रहे हैं और उसमें दूसरी मांग तो मुझे लगता है कि बेहद हंसी वाली बात है, बड़ी हास्यास्पद है। पहले तो वो कह रहे हैं कि तमाम तरह की हिंसा जो है उसे खत्म करना होगा, जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हिंसा हो रही है। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी पूरी तरह खत्म करना होगा। तो क्या परमाणु कार्यक्रम यानी पूरा खत्म ही कर देना होगा? लेकिन तो ये मुझे बताइए कि ये तो ऐसी कोई मांग ही नहीं है जिसको कि मान सकता है ईरान, या वाकई ऐसी कोई संभावना है कि ईरान मान लेगा? देखिए शेरवानी साहबा, ये जो मुकाबला है ये 47 साल से चल रहा है, और जाहिर सी बात है इतने 2-3 जनरेशन जो ये मुकाबला करते हुए ये सोसाइटी आगे आई है, ख़ास तौर पर जो इसके लीडरशिप है, जो स्ट्रेटिजिक कम्युनिटी है वगैरह, वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पहचानते हैं। और जाहिर सी बात है वो मीडिया और ट्वीट और ट्रूथ और ये सब चीज़ों से अपने तसव्वुर को नहीं कायम करते हैं। उनके पास 47 इयर्स का लाइव एक्सपीरियंस है कि वो किस से डील कर रहे हैं। उनको ये बात की अच्छी समझ है कि अमेरिका इसमें ये ख़तरनाक मुल्क है, लेकिन ख़तरनाक किस एतबार से है? कमज़ोरों की जेनोसाइड करने के एतबार से इसके पास बहुत ताकत है, लेकिन मुकाबला करने की किसी ऐसे के साथ जो पलट कर मुकाबला कर सकता है, पलट वार कर सकता है, नहीं है। मैं बहुत ही शॉर्टली बस बता दूं, अगर हमारे व्यूअर्स पिछले 80 साल का रिकॉर्ड देख लें, कोई एक ऐसी जंग कोई नहीं, हमें कोई ढूंढ के नहीं निकाल सकता कि अमेरिका ने किसी ऐसे पर हमला किया हो कि जिसके अंदर मुकाबला करने की ताकत बाकी थी। कुछ भी आप देख लें, पहले उसको इंटरनली नाबूद किया, अगर वो पहले मजबूत था भी थोड़ा बहुत, पहले अंदरूनी तौर पर उसको नाबूद किया सैंक्शंस, आपसी इख्तिलाफ वगैरह के ज़रिए, फिर जब उसको यकीन हो गया कि पलट वार करने की ताकत नहीं है तभी उसने किया है। तो ये एक रियलिटी है सामने कि ये पूरी मिलिट्री मशीन ये जंग लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, ये दबाव में डालने के लिए और उसके बाद सबसे बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन करने के लिए। इस मिलिट्री मशीन का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्ट क्या है? वो है 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक वेपन से इस्तेमाल। इससे बड़ा तो कोई उसका डिस्ट्रक्टिव एक्ट नहीं है इस मिलिट्री मशीन का। ये कब हुआ था ये हमला? ये हमला तब हुआ था जब इंपीरियल जापान ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका था कि हम जंग हार गए हैं और सरेंडर हो रहे हैं। तो ये जो मिलिट्री मशीन है, ईरान का इस्टेब्लिशमेंट इसको अच्छी तरह से पहचानता है। इसका काम ही ये है कि इसको समझना और स्टडी करना। वो जानता है अच्छी तरह से कि ये अटैक करने के लिए सिर्फ वहाँ काम आ सकती है जहाँ पर सामने वाला पलट के वार नहीं कर सकता। मिसाल वो ये है कि इस मिलिट्री मशीन का सबसे तबाहकुन हमला क्या है? 1945 के जापान में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल, हिरोशिमा नागासाकी। इससे ज़्यादा ख़तरनाक तबाही तो उसने नहीं मचाई किसी एक हमले में। ये कब हुआ था हमला? ये तब हुआ था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जाके देख लें, जब इंपीरियल जापान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जंग हार चुके हैं और हम सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर नेगोशिएशंस चल रहे थे, सरेंडर नेगोशिएशंस, उसके बाद ये हमला किया गया है। तो ये पहचान अमेरिकन मिलिट्री मशीन की कि ये लड़ने के लिए नहीं है, हाँ जेनोसाइड और डिस्ट्रक्शन के लिए है, वहाँ पर जहाँ पर मुकाबला नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ईरान ने ये साबित भी कर लिया। जी हाँ, अब मेरे आखिरी दो सवाल आकिफ साहब, अब मेरे आखिरी दो सवाल आपसे होंगे, समय मेरे पास बहुत कम है और दर्शक ये जानना चाहता है कि ईरान के पास कितनी ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मान लेते हैं इस तरह का कोई हमला होता है, कितने दिन ईरान मुकाबला कर पाएगा? पिछली बार जब न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया था तब तो हमने देखा था, बिल्कुल जैसे कहते हैं देसी भाषा में, कि मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या अगर रीजनल वॉर का जो जिस तरह की एक चेतावनी दे रहे हैं खामनेई साहब, तो मुझे बताइए कि यहीं तक ये खत्म हो जाएगा? कितनी तैयारी और कितनी स्ट्रेंथ है ईरान की? जाहिर सी बात है ईरान की स्ट्रेंथ का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पिछली बार जून में जंग हुई थी तो रिक्वेस्ट सीज फायर की अमेरिका की तरफ से आई थी और इस रिक्वेस्ट को ईरान ने अपने फ़ायदे में देखते हुए उस वक्त एक्सेप्ट किया था। और उस दिन के बाद से अब उसके कॉन्फिडेंस में, पावर में, तैयारी में कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो वो 12 दिन की जंग जो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ की मिलिट्री क़ुव्वत का, स्ट्रेटेजिक क़ुव्वत था, वो हमें ये इस बात का अंदाज़ा लगाने में मदद करती है
کہ کس لیول آف ڈیٹرنس کیپیبلٹی مقابلہ کرنے کی جو طاقت ایران کے پاس پائی جاتی ہے. اور یاد رہے کہ اس جنگ میں یہ ریجنل وار نہیں ہوئی تھی, اس کے باوجود امریکہ نے ریکویسٹ کی تھی قطر کے امیر کے ذریعے کہ سیز فائر کی جائے. اب اگر یہ ریجنل جنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا ہے کہ کتنی یہ ڈیمیجنگ ہوگی امریکن امپیریل پروجیکٹ کے لیے. تو یہ تقریباً یہ ایک طے شدہ بات ہے, اور اسی لیے کانفیڈنس ہے کہ وہ آل آؤٹ قسم کا امریکن حملہ اس کے چانسز بہت کم ہیں. اگر ہوگا تو بہت بڑی بے وقوفی کے تحت ہوگا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناممکن ہے, چانسز کم ہیں. لیکن کیونکہ انٹلیکچوئل لیول امریکن پولیٹیکل ایلیٹ کا کافی بڑے پیمانے پر اس میں تنزل اور گراوٹ آئی ہے, اس لیے غلطی کا امکان ہے, چاہے وہ جیسے یہ غلطی کریں یا نہ کریں. ٹرینڈ ایک کلیئرلی دیکھیے اس ویسٹ ایشیا میں اسٹیبلش ہو گیا ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, نیٹیوز ہیں, خاص طور پر اسلامک ریزسٹنس ایکسس جو اس میں سب سے آگے ہے, یہ پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ان کی طاقت میں, پاور میں, ان کے انفلوئنس میں, مقبولیت محبوبیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے جو پورا پاور کا آرکیٹیکچر جو بیسڈ ہے بیسکلی واشنگٹن میں بیسڈ ہے, اس کا ایک آؤٹ پوسٹ ہے تیل اویو میں, اور اس کی غلامی کر رہے ہیں بہت سارے دوسرے بادشاہ وغیرہ, ایک پورا ایک آرکیٹیکچر ہے پاور کا, وہ ہر سال دن بدن وہ ضعیف ہو رہا ہے. یہ ٹرینڈ کسی ایک حملے, کسی کے اسیسینیشن سے ہونے سے نہ ہونے سے, یہ ٹرینڈ لانگ ٹرم ٹرینڈ اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوگا. کچھ بھی ہو جائے گا, یہ ٹرینڈ اسٹیبلش ہو چکا ہے. بالکل. آپ سے آخری سوال, اور آپ کی بات سے میں بالکل پوری طرح سہمت ہوں کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا ایک طرح کی نوٹنکی میرے خیال سے کی گئی کہ کیسے یہ ٹروس ہو رہا ہے, سندھی ہو رہی ہے, قطر پر ایک حملہ کرنے دیا ایران کو ملٹری بیس پر, وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا, اور پھر دنیا کو بتایا گیا, ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا کہ دیکھیے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. مطلب کسی کوئی 10 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. بالکل آخری سوال, میں یہاں پر سوال مشکل پوچھ رہی ہوں آپ سے, وہ یہ کہ وہ لوگ بھی جو ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جب ظلم اور زیادتی کی بات آتی ہے اور ڈسینٹ کو کچلنے کی بات آتی ہے تو ایرانی حکومت بھی کسی زبردستی اور کسی وائلنس سے باز نہیں آتی, وہ بھی کم نہیں ہے. پورا اتہاس ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کسی بھی طرح کی ورود کی آواز کو دبایا جاتا ہے ایران میں. مجھے یہ بتائیے, کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ ایک طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی, وہ لوگ آؤٹ سائڈر تھے. آپ کی بات سے اگر میں آنشک روپ سے پارشلی اگر سہمت بھی ہو جاؤں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہو اور سرکار سے کوئی پریشان ہی نہ ہو, اسے کوئی کسی سے ڈس اگریمنٹ ہی نہ ہو. کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ واقعی اس بہانے ان تمام لوگوں کو بھی دبانے کا, ان کے خلاف وائلنس کرنے کا استعمال کر رہی ہے یہ سرکار, جن کو ادروائز وہ پولیٹیکلی پسند نہیں کرتی, لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانے سے لے کر ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے لے کر سینکڑوں لوگوں کی ہتیا تک؟ دیکھیے اس وقت میں غزہ کا ایک پیرالل آپ کے سامنے اور نیو ویورز کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم ڈیکیڈ سے یہ سن رہے تھے کہ فلسطینی بہت مظلوم ہیں. کیوں مظلوم ہیں؟ ایک طرف جو ہے ان کے اوپر اسرائیل زائنزم جو ہے ظلم کرتا ہے, دوسری طرف حماس جیسے گروپس جو ان پر ظلم کرتے ہیں, وہ بیچارے پس رہے ہیں, وہ صرف اپنی روزی روٹی میں انٹرسٹ رکھنے, ایک چھوٹی موٹی ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن یہ فنڈامنٹلسٹ گروپس جو ہیں ان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. لیکن یہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب جو 2.5 سال گزر گئے ہیں, کافی حد تک اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکا ہے, اور لوگ ابھی بھی پوری طرح نہیں ہوا ہے, لیکن ایک تعداد نے آخر کار اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فلسطینی خود ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے ریزسٹنس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. حماس ان کے اوپر زبردستی مسلط نہیں ہے, بلکہ اصل ریزسٹنس فورس حماس نہیں ہے, بلکہ اصل ریزسٹنس فورس فلسطینی سوسائٹی ہے. یہ کافی حد تک یہ بات اب مجبور ہوئے لوگ ایکسیپٹ کرنے کو کہ ایسی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں ایران کے بارے میں کہ البتہ ایران کے بارے میں ابھی تک یہ پروپیگنڈا کی دیوار ابھی ٹوٹی نہیں ہے, اچھا سا کریک بھی نہیں پڑا ہے. فلسطین میں اچھا خاصی درار پڑ گئی ہے. ایران کی ابھی نوبت آنا باقی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ٹوٹے. یہاں کی اوور ویلمنگ میجورٹی اسلامک ریولیوشن کو, ریزسٹنس کے راستے کو پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے, اوور ویلمنگ میجورٹی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے اس کے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ پالیسیز پر اختلاف ہے. ہو سکتا ہے اس کو رولر, اس کو یہ پریسیڈنٹ نہیں پسند, اس کو فلاں نہیں پسند, چینج ہونا چاہیے, لیکن جو راستہ انتخاب کیا گیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے بیس پر ریزسٹنس ہونا ہے گلوبل امپیریلزم کے خلاف, یہ راستہ اس سوسائٹی کی اوور ویلمنگ میجورٹی کا
पूरी सोच समझ के साथ, देखिए उनकी एजेंसी को डिनाई न किया जाए, नहीं उनको प्रोपेगेंडा के जरिए, नहीं, हम क्यों डिनाई करते हैं कि उन्होंने सोच समझ के ये रास्ता इंतखाब किया है और इसकी कीमत अदा कर रहे हैं और अदा करने को तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल इस सवाल का बैकग्राउंड के साथ एक में हिस्सा, जी हाँ, मैं सवाल का बस एक हिस्सा ले लेती हूँ, फिर मुझे खत्म करना होगा कार्यक्रम, समाप्त, मेरे पास समय नहीं है। हमने ये भी देखा है कि हिजाब को लेकर, जो सरकारी और जबरदस्ती का हिजाब है, उसको लेकर किस तरह से कुचला गया था उस पूरे इनकलाब को। उनमें फिर मैं ये कह रही हूँ, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, प्रोपेगेंडा है, साजिश है, बाहरी ताकतें हैं, लेकिन अपने ही लोगों पर इतना जुल्म, अपने ही लोगों पर इतनी ज्यादती, और मजहब का एक इस तरह का इस्तेमाल जिसमें कि आप औरत को एक तरह से एक हथियार बनाकर पेश कर रहे हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और एक ब्लैकमेलिंग है और एक ज्यादती है, जबर है, लेकिन दूसरी तरफ वो हुकूमत जो खुद ईरानियों की है, वो भी चाहे हिजाब को लेके प्रोटेस्ट हो या भी इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके प्रोटेस्ट हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या बिल्कुल कोई गुनाह ही नहीं किया ईरान के रिजिम ने? ईरान की जो हुकूमती निज़ाम है, हर दूसरे हुकूमती निज़ाम की तरह उसमें कई सारे करेक्शंस और इस्लाहात की गुंजाइश है। इकोनॉमिक फैक्टर पर ही अगर आप फोकस कर लें, इतने बड़े यहाँ पर इकोनॉमिक फील्ड में एरर्स हैं। मिसाल के तौर पर अभी तक डी डॉलराइजेशन इनके इंटरनेशनल ट्रेड में उस पैमाने पर ये नहीं कर सके जैसा कि इनको करना चाहिए था, या सब्सिडीज़ का जो निज़ाम है यहाँ पर वो किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल रहा है, उसको आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि एरर्स नहीं है, गलतियाँ नहीं है, करप्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें हर सिस्टम में, हर निज़ाम में होती हैं। लेकिन जो सवाल पूछा गया है और जो आमतौर पर बात की जाती है, वो इस हद तक नहीं होती है, बल्कि इस हद तक बात होती है कि एक डिक्टेटोरियल अनपॉपुलर सिस्टम मुसल्लत है यहाँ के मासूम मजलूम लोगों पर। ये दर हकीकत एक पेचीदा किस्म का रेसिज्म है जो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि एक कौम एक अलग रास्ते पर चलना चाहती है। शेरवानी साहिबा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जिस किस्म की पत्रकारिता और सहाफ़त करती हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ है। कई लोगों को आपकी पत्रकारिता के सिलसिले में सवाल होता है कि भाई क्या ज़रूरत है आपको ये करने की, इसकी वजह से कितनी मुश्किलात हो रही हैं, क्यों आपने ये अलग रास्ता चुना है। लेकिन आप जानती हैं कि आपका ज़मीर इसके अलावा आपको किसी भी और किस्म की सहाफ़त करने की इजाज़त ही नहीं देता। यहाँ का जो कौमी ज़मीर है, अलबत्ता 5-6% लोग इससे आउट हैं, जाहिर सी बात है। मैं वही बस उसी तरफ मैं इशारा करना चाहती थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग उस तरह की जो आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने ये रास्ता इंतखाब किया है। वो इस हुकूमती निज़ाम को अपना हुकूमती निज़ाम समझता है। उससे जो शिकायत होती है वो अपनों वाली शिकायत है। मैं 12 जनवरी के जुलूस को मैंने नज़दीक से देखा, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने जनरली इग्नोर किया, कि सिर्फ जिस शहर में मैं हूँ, इस शहर की 40% आबादी उस जुलूस में आई थी। आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में अगर 1 लाख 2 लाख का मजमा कहीं आ जाता है किसी प्रोटेस्ट में, तो हम कहते हैं बहुत बड़ा इवेंट था। दिल्ली की अगर 40% आबादी आएगी, आप तस्वीर करिए, बहुत बड़ी बात है ये। आकिब साहब, मुझे ये खत्म करना होगा डिस्कशन यहीं पर, और मुझे लगता है कि मैं बात पूरी कर लूं। ये 40% आबादी आई थी, यहाँ के गवर्नमेंट निजाम के सपोर्ट में आई थी, और रिजेक्ट करने के लिए वो टेररिज्म जो 8 और 9 जनवरी को होती है, 12 जनवरी के दिन का ये इवेंट है, उसमें उन्होंने अमेरिका इसराइल के खिलाफ तो नारे लगाए भी, लेकिन हुकूमत के इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ भी नारे लगाए। क्यों? हम समझते हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा किसी चीज को लेकर, तो वो चाहता है कि ये सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप खत्म हो। ये हमारे जो है, या तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है, जैसे मैंने कहा, एक पेचीदा किस्म का रेसिज्म है जो हम लोग इंडिपेंडेंट सोसाइटीज के सिलसिले में हमें हजम करने में मुश्किल होती है। जी हाँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई रोज ऐसा भी होगा, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं ईरान की हमदर्द हूँ अमेरिकन वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ, लेकिन जहां ईरानी अवाम की बात आएगी, जहां वहां की औरतों की बात आएगी, वहां की प्रेस की बात आएगी, लोगों के बोलने की आज़ादी, अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आज़ादी, उस पर मेरी इख्तिलाफ राय रहेगी ईरानी हुकूमत से भी और वहां की जो क्लर्जी है उनसे। उम्मीद मैं करती हूँ कि एक दिन ऐसा भी होगा, मैं और आप बैठेंगे और इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खुल के बातचीत होगी, कुछ मुश्किल सवाल मैं पूछूंगी, कुछ जवाब आप देंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और सीधे ईरान से जुड़ने के लिए।